ٹیلی ویژن پروگرامز، لائیو بائبل سٹڈیز، غیر مسیحوں کے مشکل ترین سوالات کے جوابات، کئی ہاٹ ایشوز پر مبنی مختلف زبانوں میں ایمان افروز یوٹیوب چینل، نوجوانوں کے مسائل، آن لائن کورسز، میری کئی کتب اور کئی کتب کے تراجم، بائبل مقدس کی کئی کتب کی تفاسیر اور اس بیش قیمت خزانہ تک رسائی کے لیے رابطہ کیجیے www.newlifeinstitute.org۔ مسیحا کے پاک، جلالی اور افضل ترین نام میں میرے ہم ایمان بھائیوں، بہنوں اور ہم خدمت ساتھیوں، خداوند کا یہ خاکسار خادم آج پھر آپ سب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہے۔ خواہ آپ ہمارے ساتھ اس اسکائپ آئی ڈی پر ہیں، یا آپ ٹک ٹاک پر ہیں، یا ہمارے ساتھ فیس بک کے کئی پیجز پر اس وقت موجود ہیں، یا یوٹیوب پر یا واٹس ایپ میں خداوند کے کلام کو سن رہے ہیں، میری آپ سب کے لیے دعا ہے کہ خداوند ماضی رفتہ کی طرح آج بھی اپنے اس زندگی بخش اور لا تبدیل اور معتبر کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں اور ہم سے ہم کلام ہو، تاکہ خدا کی مرضی کو ہم اپنی شخصی زندگی کے لیے آج جان سکیں۔ آج کے دن آپ کے ساتھ مل کر میں رومی کلیسیا کے نام لکھے گئے مقدس پولس کے خط کا مطالعہ کیا کرتا ہوں۔ 6 باب میں ہم ہیں اور مقدس پولس اس وقت کے اپنے قارئین کو، جن کی بیک گراؤنڈ رومی تھی اور اب مسیح یسوع میں آ گئے تھے، تبدیل ہوئے اور مسیح پر ایمان لائے تھے، ان سے بات کر رہے ہیں۔ اور یہ بات صرف اس پہلی صدی عیسوی کے لیے ہی نہیں، بلکہ ہر زمانے کے لیے ہے، جو خداوند آج مجھ سے اور آپ سے بھی کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ خدا کا کلام وقتوں اور میادوں کی قید میں نہیں ہے۔ ہر جا اور ہر ملک اور ہر شہر میں خدا کا کلام ویسا ہی اثر رکھتا ہے جیسا پہلی صدی عیسوی میں تھا۔ ہم بات کر رہے تھے کہ مقدس پولس غلام اور آزاد کی بات کرتے تھے، یا دوسرے لفظوں میں غلام غلام ہی رہتا ہے اگر وہ غلامی میں ہی ہو۔ روحانی پہلو کے اعتبار سے ہم یہ سیکھ رہے تھے کہ جو گناہ کا غلام ہے، گناہ اس کا باس یا مالک ہے، اور جو کوئی فرما برداری کا غلام ہے، وہ راست بازی کا ہے جو خدا کو پسند ہے۔ اور اسی بات کو مقدس پولس کنٹینیو رکھتے ہیں، اور آج بھی میرے لیے اور آپ کے لیے اسی بات کو لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ میں اس غلامی سے متعلق تھوڑا اور تفصیل سے بیان کروں گا تاکہ ہم بہتر طور پر سمجھ پائیں۔ رومیو 6 باب اور اس کی 17 اور 18 2 آیات آپ کی خدمت میں تلاوت کیے دیتا ہوں، اور آپ جن کے کان ہیں اس بات کو جانیں کہ یہ کان خدا کی طرف سے نعمت ہے، ان کا بھرپور طریقہ سے استعمال کریں تاکہ خدا کے کلام کی باتیں ہمارے دلوں میں بس رس جائیں۔ کتاب مقدس میں یوں لکھا ہے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ اگرچہ تم گناہ کے غلام تھے تو بھی دل سے اس تعلیم کے فرما بردار ہو گئے
जिसके सांचे में तुम ढाले गए थे। 18, और गुनाह से आजाद होकर रास्तबाजी के गुलाम हो गए। यूं लगता है कि हमने इससे पहले जो 15, 16, 17, खासकर 16, 17 आयात पर गौर किया, तकरीबन कुछ वैसी ही बातें हमें इन 2 आयात में भी मिलती है। याद कीजिएगा, शुक्रगुजारी है मुकद्दस पौलुस। मैं चाहता हूं कि इन आयात का जो मरकजी ख्याल है आपके अजहान में बस रस जाए। वो कहते हैं लेकिन खुदा का शुक्र हो, यानी माजी में आप गुनाह के गुलाम थे, लेकिन खुदा का शुक्र हो कि अगरचे गुनाह के गुलाम थे तो भी दिल से उस तालीम के फर्मा बरदार हो गए। उस तालीम के फर्मा बरदार हो गए जिसके सांचे में तुम ढाले गए हो। यहां पर मैं यूं कहूंगा कि रीजनरेशन, न्यू बर्थ, या रूहानी तौर पर एक ट्रांसफॉर्मेशन या इनकलाब और तब्दीली या कन्वर्शन की पौलुस रसूल बात करते हैं। और यह बात किन से करते हैं? जिन्होंने अपनी पुरानी इंसानियत को उतार डाला और नई इंसानियत को जो मसीह यीशु में है पहन लिया है, उनसे बात कर रहे हैं। और आज हम जो इस वक्त ऑनलाइन हैं और खुदा के कलाम को मिलकर सीख रहे हैं, अगर आप समझते हैं कि आप भी गुनाह के गुलाम थे, लेकिन अब गुनाह के गुलाम नहीं, वो आपका बॉस और वो आपका मालिक नहीं है। अब उस गुनाह की गुलामी को तर्क करके छोड़ करके अब मसीह यीशु के फर्माबरदार हो गए हैं। क्योंकि यहां लिखा है अगरचे तुम गुलाम थे तो भी दिल से उस तालीम के फर्माबरदार हो गए हो, यानी तुम कन्वर्ट हो गए हो, तुम तब्दील हो गए हो, तुम्हारा दिल बदल गया, तुम्हारी सोच बदल गई, तुम्हारी नीयत बदल गई और तुम्हारी मंजिल बदल गई है। इस तब्दीली से मुताल्लिक वो बयान करते हैं कि खुदा का शुक्र हो। हम इसके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं इस तब्दीली के लिए जो ए ईमानदार तेरी जिंदगी में वाकया हुई है। लेकिन लेट्स सी व्हाट ही इज सेइंग एल्स। यहां पर लिखा है इस तालीम के फर्माबरदार हो गए हो जिसके सांचे में तुम ढाले गए हो। मुराद यह है कि आपकी कन्वर्शन का दारोमदार निरा आप पर नहीं है, नहीं, आपकी मर्जी इसमें शामिल है, लेकिन यह खुदा की तरफ से मसीह यीशु में एक पेशकश आपको की गई और आपने उस पेशकश को कबूल किया है और यूं आपको एक हयाते नौ, नई जिंदगी मिल गई है। खुदा मजबूरी से किसी को कंपेल नहीं करता कि वह जरूर उसकी पेशकश को कबूल करे। जो चाहे कबूल करे, जो चाहे रद्द करे, लेकिन इसके जो नताइज हैं, इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो दुरुस्त नहीं होंगे। इस बात को जानने की जरूरत है कि मुकद्दस पौलुस उन लोगों को जो अब मसीह यीशु में आ गए थे उनके लिए शुक्र अदा करते हैं और कहते हैं शुक्र हो खुदा का कि तुम तब्दील हो गए हो, क्योंकि पहले तुम गुनाह के गुलाम थे,
लेकिन अब फर्माबरदारी की इस तालीम को कबूल करके इस तालीम के सांचे में ढाले गए हो। ये दिल से इस तालीम के कबूल करने की बात है। मैं फिर से कहूंगा, यह कन्वर्शन की बात है। बाज़ औक़ात लफ्ज़ कन्वर्ट हम उन्हीं के लिए इस्तेमाल करते हैं जो दूसरे अदियान से निकलकर मसीह यस्सू में आते हैं। लेकिन मैं यूं कहूंगा कि खुदा के कलाम के मरकजी ख्याल के मुताबिक जो कन्वर्ट नहीं वो मसीही भी नहीं, क्योंकि मसीही होने के लिए कन्वर्शन का अमल, तब्दीली का अमल, नया मखलूक होने का अमल, यह लाजिम व मलजूम है। तो अब मुकद्दस पौलुस उनको यह बताते हैं कि तुम उस फर्माबरदारी की तालीम के सांचे में ढाले गए हो। यह अमल खुदा की तरफ से है। जब हम अपने आप को खुदा के स्पुर्द करते हैं तो फिर खुदा अपने ग्रेस, अपने फजल से हमें तौफीक बख्शता है कि हम अपने पुराने मालिक यानी गुनाह को ना करें और फिर नए मालिक खुदाबंद यीशु मसीह की पैरवी में यस कहते हुए हम आगे बढ़े। अब जिस गुलामी की पहले बात हो रही थी वो गुनाह की गुलामी है। कलाम कहता है ना, हर वो शख्स जो गुनाह करता है यानी करता रहता है वो गुनाह का गुलाम है। और हर वो शख्स जो रास्तबाजी को कबूल करता है वो रास्तबाजी का गुलाम है। यहां पर जो लफ्ज गुलाम है शायद आपको अजीब लगे, लेकिन आप उसको वो बंधा हुआ बॉन्ड स्लेव के तौर पर नहीं समझें। वो एक इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं मुकद्दस पौलुस, एक मिसाल देते हैं एक गुलाम की। और मैंने गुजरे हफ्ते थोड़ी सी बात की थी इस गुलामी और आजादी के ताल्लुक से, लेकिन इसका मतलब यह है कि आप उस पुराने बॉस को छोड़कर अपने एक नए मालिक की खुशी के लिए जो कुछ करते हैं वो करते हैं। गुलाम की हकीकत को अगर देखा जाए तो हम जरा बेहतर तौर पर इस गुलामी की बाबत जो गुनाह की गुलामी है या रास्तबाजी की गुलामी, फर्माबरदारी, हम उसको और बेहतर तरीका से समझ पाएंगे। गुलामी की हकीकत यह है कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हम गुनाह की गुलामी में पैदा हुए हैं। हां, गैर मसीही लोग ये कहते हैं कि हम पैदाइशी तौर पर गुनाहगार नहीं हैं। हम इस माहौल में जब आते हैं तो इस माहौल का असर हम पर होता है जिस सबब से हम गुनाह करते हैं। लेकिन खुदा का कलाम यह नहीं कहता। हम पैदाइशी तौर पर गुनाह में पैदा होते हैं और बुजुर्ग दाऊद उसका इकरार करते हैं, वेखो मैं भी पैदा होया, वेखो विच बुराई ते मैनू विच गुनाह दे जमया मेरी माई। वो भी इस बात का इकरार कर रहे थे। इसीलिए हम गुनाह के गुलाम हैं। पैदाइशी तौर पर इस बात को समझने की जरूरत है। नंबर 2, एक गुलाम वो है जिसकी अपनी मर्जी नहीं होती है। वो मुकम्मल तौर पर अपने मालिक के सामने अपने आप को सरेंडर कर चुका होता है। क्या मतलब है? जब हम गुनाह के गुलाम थे उस पुरानी जिंदगी में, क्योंकि हम उसमें पैदा हुए, तो हम उसी मालिक की खुशनुदी के लिए जो कुछ करते थे। लेकिन हम
जब नए मखलूक हो गए रूह कुदस की कुदरत से, उसके बाद हम इस नए मालिक की फर्माबरदारी में अपनी जिंदगी को गुजारते हैं। लेकिन याद रखें, हमारी अपनी मर्जी हमारे ताबे नहीं होती। जिसके हम गुलाम होते हैं, जो हमारा मालिक होता है, उसी की मर्जी के मुताबिक हम आगे बढ़ते हैं। याद रहे, मैंने कई दफा कहा कि जो गुलाम होते थे उनकी अपनी मर्जी कतई नहीं चलती थी। जो मालिक होता था उसी की मर्जी उन पर चलती थी। तीसरी बात, गुलाम ता वक्ते के मौत ना आए उस वक्त तक उसको गुलामी में ही रहना होता था। अब जो गुनाह का गुलाम है, गुनाह की मजदूरी मौत है। लेकिन अब जब हम मसीह यस्सु में हैं, नए मखलूक हैं, नया मालिक है यानी आका और खुदावन, तो उस आका और उस खुदावन के सबब से हम नए आसमान और नई जमीन के शहरी हैं। और हम पर जो नए मखलूक हैं, फिजिकली मौत तो है, लेकिन वो इसलिए है कि हम हयाते अबदी के दरवाजा से दाखिल होकर हमेशा हमेशा अपने मालिक और अपने खुदावन के हां रहें। ये प्रिविलेज और ये शर्फ और आजाज उनको हासिल है जिन्होंने मसीह खुदावन को अपना मालिक तस्लीम कर लिया और गुनाह जो पहले उनका मालिक था उसको पीछे छोड़ दिया है। याद रखिए कि जो गुलाम होता था वो ता वक्ते के मौत ना आए वो अपने मालिक के ताबे रहता था। हमारी एक और आईडी है जिस पर मैं बोला करता हूं। हम दानियल की किताब का मुतालिया करते हैं और वहां एक बुजुर्ग हैं, उनको देखकर मेरी भी एक तमन्ना पैदा हुई और वो अक्सर ये कहते हैं कि मेरे लिए ये दुआ करें कि जब तक मेरे पांव इस जमीन पर हैं मैं अपने खुदावन का वफादार रहूं, नाफरमानी ना करूं। कितनी अच्छी दुआ है, कितनी अच्छी ख्वाहिश है। काश के हर मसीही की यह ख्वाहिश हो कि जब तक मेरे पांव इस धरती पर हैं मैं अपने मालिक अपने खुदावन का फर्माबरदार रहूं और मैं अपने मालिक से कभी भी बगावत करके यहूदा का सा किरदार अदा न करूं। यह बड़ी अहम बात है हम सब के लिए, सोचने के एतबार से भी और गौर खोज करने के एतबार से भी। जो गुलाम होता था वो अपनी तमाम ख्वाहिशों को कुर्बान करके अपने मालिक को खुश करता था। अदन में हुआ था कि नहीं हुआ था, और उसके बाद आज तक इब्लीस उन्हीं कदीम हथियारों को इस्तेमाल करता चला आ रहा है। जिस्म की ख्वाहिश, आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शही। लेकिन जो मसीह यस्सु में है वो अपनी ख्वाहिशों को, अपनी पुरानी इंसानियत को उतार चुके होते हैं और मसीह के साथ सलीब पर मसलूब हो चुके होते हैं और एक नई जिंदगी अपने एक नए मालिक के साथ गुजारते हैं। ओ मेरे तब्दील शुदा भाई और बहन, आप जिन्होंने तौबा की, नई पैदाइश पाई, रूहानी पैदाइश पाई, नया जन्म लिया है, निजात याफ्ता है, बैप्टाइज हुए हैं, क्या
میں نے اور آپ نے اپنے جسم کی خواہشوں کو، آنکھ کی خواہش کو اور زندگی کی شیخی کو اپنے اس نئے مالک خداوند کے تابع کیا، یا بعض اوقات وہ خواہشات جنم لیتی ہیں اور میں فیل ہو جاتا اور جاتی ہوں؟ ذرا سوچنے کا مقام ہے۔ اور پھر غلامی سے متعلق چند اور باتیں ہیں جو اس کی حقیقت کو عیاں کرتی ہیں۔ میں نے کہا ہم گناہ میں پیدا ہوئے، ہم گناہ کے غلام ہیں۔ میں نے کہا گناہ نے ہماری مرضی کو گویا نگل لیا اور اس کے تابع ہو کر ہم اپنا جیون گزارتے چلے آئے، اور اس عہد کو صرف مسیح کے ساتھ صلیب پر قربان ہونے کے سبب سے ہی توڑا جا سکتا ہے، جو ہم نے پرانے مالک کے ساتھ باندھا تھا۔ اور مسیح کے ساتھ اپنے آپ کو پرانی انسانیت کے اعتبار سے مسلوب کرنے کے لحاظ سے ہم اپنے نئے مالک یعنی خداوند یسوع مسیح کی پیروی اور اس کی فرما برداری میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ جو گناہ کے غلام ہیں وہ نہ چاہتے ہوئے بھی گناہ کی مرضی کے تابع ہو جاتے ہیں، جس نے ان کے جیون کو تباہ کر دیا۔ آج صبح ہمارے چرچ کا ایک ممبر، اس نے فیس بک پہ میں نے دیکھا کہ کیک لیا ہوا تھا اور اس کے اوپر 2 کینڈلز، 2 موم بتیاں جلائی، اور پھر وہ ان کو پھونک مار کر ان کو بجھایا، اور میں نے سوچا کہ اس کی برتھ ڈے ہے اور میں اس کو برتھ ڈے وش کر دوں، اور میں نے لکھا کہ آپ کو ہیپی برتھ ڈے کہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں خدا کرے کہ آئندہ سال آپ کی زندگی کے بڑے خوشگوار اور بڑے بابرکت گزرے۔ لیکن اس نے جواب کیا دیا، اس نے کہا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرے لیے یہ دعا کی، لیکن اصل میں یہ جو 2 کینڈلز میں نے جلائی ہیں وہ اس بات کی علامت ہے کہ گزرے 2 سال سے پہلے میں انتہائی الکوہلک اور شرابی تھا، میری زندگی ناگفتہ بے تھی، میں الکوہل کے ہاتھوں بکا ہوا تھا، میں غلام تھا، لیکن 2 سال پہلے روح القدس نے میری زندگی میں انقلاب پیدا کیا اور میں تبدیل ہوا، اور میں اس دوسرے سال میں بھی کہ خدا نے مجھے صبر بخشا ہے کہ میں دوبارہ اس طرف نہیں گیا، میں خدا کے حضور شکر گزاری کرتا ہوں۔ یہ اس کا جواب تھا، کتنا خوبصورت جواب تھا۔ میں اپنے بارے میں بتاؤں، 8 اکتوبر 1984 میری روحانی برتھ ڈے ہے، روحانی، اور اس وقت مشن فیلڈ میں ملیشیا کے بعد تھائی لینڈ میں تھا، اور جو ہماری اپنی مسیحی فیملی ہے، کیونکہ جسمانی خون کے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، توڑ دیے گئے، میں اپنوں کی بات کرتا ہوں، لیکن جو روحانی رشتے ہیں وہ بڑے مضبوط ہوتے ہیں۔ 8 اکتوبر کو میں تھائی لینڈ میں تھا، اور جس اپنی فیملی کے ساتھ جو مسیح کے لہو میں شریک میری فیملی ہے، انہوں نے آلریڈی پہلے سے پلان کیا ہوا تھا کہ 8 اکتوبر کو پاسٹر جی کی روحانی برتھ ڈے ہے، سالگرہ ہے، اور ہم ان کی شکر گزاری میں
केक काटेंगे। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूं, लेकिन ये मुझे याद दिलाता है कि मैं पुराने मालिक को पीछे छोड़कर 8 अक्टूबर 1984 को मैं एक नए मालिक की पैरवी में वो चला, जो खुदावन यीशु मसीह है। आप अपने बारे में सोचिए, कौन सी सन, कौन सा माह और कौन सा दिन था जब आपने अपने पुराने मालिक को बाय बाय कह दिया और नए मालिक के हुजूर अपने आप को सरेंडर कर दिया। सोचने का मुकाम है, सोचने का मुकाम है। जो हमारे जीवन में होगा ना, उसी के से काम हमारी जिंदगी से होंगे। ये बड़ी अहम तरीन बात है। अब जो रास्तबाजी की गुलामी है, उसके ताल्लुक से मैं कहूं, नई पैदाइश के सबब से हम रास्तबाजी के गुलाम होते हैं। याद रखिएगा, गुलाम से मुराद बॉन्ड स्लेव नहीं, इसके माना फर्मा बरदारी आप ले सकते हैं। नंबर 2, फिर हमारी अपनी मर्जी नहीं, बल्कि अब खुदावंद की मर्जी के हम ताबे हो जाते हैं, और फिर हमारी नहीं बल्कि खुदावंद की मर्जी हमारी जिंदगी में पूरी होती है। और फिर जब हम मसीह के लहू के वसीला से खुदा के साथ रिश्ते में कायम हो जाते हैं, तो ये एक अनटूट रिश्ता है, और इस रिश्ते के लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। फिर हम अपनी खुदगर्जी की ख्वाहिशात के बावजूद उनका जनाजा उठा देते हैं, और फिर खुदा की मर्जी को अपनी जिंदगी में तरजीह देते हैं। इस बात को याद रखना बहुत जरूरी है। अभी आयत 17 और क्लियर समझ आ गई होगी। लिखा है, लेकिन खुदा का शुक्र है कि अगरचे तुम गुनाह के गुलाम थे, तो भी दिल से उस तालीम के फर्माबरदार हो गए जिसके सांचे में तुम ढाले गए हो। सांचा क्या होता है? एक डाई होती है, एक फर्मा होता है, एक ऐसा आप कह सकते हैं सांचा, जिसके अंदर केक बनाने वाले केक बनाते हैं, और जैसे सांचे की शक्ल होगी वैसे ही केक बनेगा। मशीनरी में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सांचे में बनती हैं, लोहे को, चांदी को पिघलाकर। रिंग्स और ज्वेलरी और ये सब कुछ पिघलाकर सांचे में ही डालने से, डाई में ही डालने से वैसे बनते हैं जैसे बनाने वाले की आरजू होती है। बायन ऐसे ही मैं और आप जब इस नए मालिक की फर्मा बरदारी में हो लेते हैं, इस तालीम को मानते हुए, तो हम कलाम के इस सांचे में ढल जाते हैं, और रोज बरोज हम मसीह की सूरत पर ढलते चले जाते हैं, बशर्ते कि हम पाक रूह को मौका दें कि वो हमारी जिंदगी में गहरा और अमीक काम करे। 18 आयत, और गुनाह से आजाद होकर रास्तबाजी के गुलाम हो गए। गुनाह से आजाद हो गए, पीछे छोड़ दिया, और अब रास्तबाजी के गुलाम यानी रास्तबाजी के ताबे और फर्मा बरदार हो गए, और वो रास्तबाजी खुदावंद यीशु मसीह है और उसका कलाम है। याद रखें, पहला यूहन्ना पहला बाब और उसकी 8 आयत में एक अहम तरीन सदाकत है जिसको हमें याद रखना है, और बड़ी गौर तलब भी है, और उसके ताल्लुक से हमें और भी बहुत सी तालीमात मिलती हैं, और हम अक्सर औकात आयत 9 को तो पेश करते हैं, लेकिन शायद
8 को इतना नहीं लिखा है, अगर हम कहें कि हम में गुनाह नहीं, अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो अपने आप को फरेब देते हैं और हम में सच्चाई नहीं। गुनाह हम पर हावी हो सकता है, हम गिर सकते हैं, लेकिन हमेशा गिरे ही नहीं रहते। याद है मैंने एक दफा आपको एक कहावत सुनाई थी कि किसी ने कहा कि अगर आपका बैल हर रोज गड़े में गिरता है, हर रोज गड़े में गिरता है, तो या तो इस बैल से अपनी जान छुड़ा लो या इस गड़े को भर लो। कितनी खूबसूरत बात है। तो हमें अपने आप की बाबत देखना है कि ऐसी कौन सी बात है जिससे हमें जान छुड़ानी है, और ऐसे कौन कौन से आजमाइश के गड़े हैं जिनको भरने की जरूरत है। लेकिन यीशु की कुदरत हमें गुनाह पर गालिब आने की तौफीक बख्श सकती है। अब हम गुलाम नहीं हैं, हम आजाद हैं और रास्तबाजी के गुलाम और ताबे हैं। लाजिम है कि अब उसी तरह से ही जिसकी गुलामी और जिसकी फरमाबरदारी में इस वक्त मैं और आप हैं, उसी तरह से ही अपनी जिंदगी उसके हुजूर गुजारने वाले हो। खुदावंद मुझे और आपको आज के इस जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से बरकत दे, और खुदावंद ने मुमकिन किया तो नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे और यहां से ही अपनी इस बाइबल स्टडी का आगाज करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज। गॉड ब्लेस यू ऑल। www.newlifeinstitute.org